like a guest. December is the last, December is the best. Each has lovely things, each one is a friend. But December brings Christmas at the end. A very warm good morning to all of you present here. On this beautiful morning, I, people, I, Suhana, and I, Rishita, welcome you all to the most cherished morning of this year, for which everyone has been eagerly waiting for. Today is a special day filled with joy, love, and the spirit of giving. It is a time for togetherness, reflection, and celebration. Yes, it's a day to remember the birth of Jesus Christ, and a day to cherish the love and goodwill that fills the air. It's a joyous moment for all of us to begin our program with prayer. Let the prayer be rooted in the love, peace, and joy of Jesus. So, we request Reverend Father Principal to lead us into the Lord's Prayer, followed by prayer song. Our Father, who is in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thank you.
celebration, we will now light the 4 candles of Advent, which symbolize hope, peace, joy, and love. We will also light the 5th candle in the center of the wreath, representing the birth of Jesus Christ. Now, we would like to invite Reverend Father Principal, Father Jackson, Sister Jana, Sister Shinto, and Sister Priya to come on the stage to light the wicks of these 5 candles. As we light these candles, let the spiritual message of the 5 candles of Christmas enter into our lives. Sorashi's greenhouse captain for his speech on this auspicious occasion. The true spirit of Christmas is putting others' happiness before our own and finding we have never known such happiness. Greetings of the day to Reverend Father Principal, Father Vice Principal, Sister Jana, all respected teachers, and all my dear ancient minds. Today I, Sorashi's, stand here to deliver a speech on the true spirit of Christmas. Christmas is a season of love, the promise of peace, goodwill, and a growing sense of excitement, expectation, and more importantly, rejoice. We can feel the pleasant ambience everywhere. The decorated homes, big Christmas trees, Advent wreaths, Christmas gifts, replication of nativity scene, etc. Therefore, we eagerly wait for this occasion, as it is the season to be happy and spread happiness. The very fact that Jesus was born as a human is the proof of his unconditional love for the humanity. So, it is the feast of God living within us and with us. We can experience, rather, we need to experience the presence of God in us and around us. We are to see Him in the lonely, in the enslaved, in the downtrodden, and destitute. We can do this provided that we imbibe the teachings of Jesus Christ. This Christmas is the time to introspect on His teachings and what He did for the humanity. He sacrificed His life to redeem the sinful people. Unfortunately, what we do, the way we live, is just contrary to His teachings. He has taught us to love our enemies and love others as we love ourselves. Don't you think our celebration becomes superficial as we focus more on the activities like beautiful decorations, making big Christmas trees, doing shoppings? What we need to do is to transform ourselves, making our heart filled with divine love. Christmas is not just a mere exchange of gifts and welcoming Santa. As we celebrate the great feast of incarnation of God becoming man, let's our heart filled with divine love and experience peace, love, and joy. So, be compassionate and make everyone experience the true spirit of Christmas. Let's all together embark on a transformating journey to create a world of peace and harmony. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. It is rightly said, Christmas magic is silent. You don't hear it, you feel it. We have a wonderful program lined up for you, so it's going to be a great morning which will fill the ambience with festive color. Let's get ready. Delve deep into the fathom of dance drama based on the life of Jesus Christ. So, here we begin the dance drama with carol singing.
लीजिए। इसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश यानी ज्ञान में भलाई था। प्रकाश अंधेरे में चमकता है पर अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। परमेश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वह एक साक्षी के रूप में आया ताकि वह लोगों को प्रकाश के बारे में बता सके। वह इस जगत में ही था और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया था, पर इस दुनिया ने उसे पहचाना नहीं। लेकिन जिन्होंने उसे पहचान कर अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वह पुत्र जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उस आदिशक्ति ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परमपिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। उसकी करुणा और सत्य की पूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किए। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा किंतु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने मनुष्य रूप में सबको दर्शन दिए। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नृत्य नाटिका के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का महत्व समझाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शब्द देह बना। पापा देखो, माँ ने कितने सुंदर कपड़े दिलाए हैं। थैंक यू माँ, लव यू सो मच। बातें छोड़ो, अभी आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें चर्च भी तो जाना है। हाँ हाँ, जल्दी चलो जल्दी चलो। अभी हमें मैथ्यू के घर जाकर मैथ्यू के परिवारजनों को भी तो लेना है। ठीक है पापा, एग्नेस मेरी दोस्त है, हम उसे भी साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ चलो। बेटा एग्नेस, थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद कपड़े और खिलौने दिलवा दूंगा। पापा, आपने पिछले साल में यही कहा था। अरे तुम क्या दिला पाओगे कपड़े और खिलौने? तुम तो खाली दिलासा ही देते हो। पापा, मुझे भी नए कपड़े ला कर दो, मैं पिछले साल वाले कपड़े नहीं पहनूंगी। मेरे दोस्त मुझे पुराने कपड़े देकर चिढ़ाते हैं। एग्नेस हमारी इकलौती बेटी है, क्या तुम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? एग्नेस अभी छोटी बच्ची है, ना समझ और नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तुम सब कुछ जानते हुए भी एग्नेस के सामने ऐसी बातें कर रही हो। अरे किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। चर्च चलकर प्रार्थना करने की बजाय आप लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, प्रभु का संदेश हमें भाईचारा सिखाता है। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव नहीं करना चाहिए। एग्नेस बिटिया, प्रभु हमारा दिल देखते हैं, ना कि हमने क्या कपड़े पहने हैं। बेटा, हमें सच्चा, ईमानदार और नेक दिल बनना चाहिए। हमारा व्यवहार सभी से आदर और प्यार का होना चाहिए। अपने सुंदर कपड़ों से आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। आप अपने बोलने के तरीके से सभी के दिल में जगह बना सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं आंटी। ईश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को दुनिया में भेजा ताकि दुनिया का उद्धार हो सके। वे ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करा और हमारे बीच रहने का निर्णय लिया। ईश्वर मनुष्य बना? ईश्वर तो ईश्वर है, फिर मनुष्य ही बना पड़ा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मारिया और एग्नेस, चलो मैं उस घटना के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ जो अब से लगभग 2000 वर्ष पहले घटित हुई थी। आप कौन सी घटना की बात कर रहे हैं पापा? प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर ने मात्र 6 दिन में पूरे संसार का निर्माण किया। 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया। इस 7वें दिन को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन प्रभु ने सृष्टि के निर्माण का कार्य समाप्त करके विश्राम किया था। हाँ, और ये वो ही दिन है
में विशेष पूजा की जाती है। ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य का निर्माण किया। प्रभु ने मनुष्य में प्राणवायु फूकी और मनुष्य एक सजी सत्य बन गया। परमात्मा ने मनुष्य को पाप ना करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन मनुष्य ईश्वर की बात ना मानकर पाप कर बैठा। अपने पापों के कारण अंधकार में डूब गया। और आज हम देखते हैं मनुष्य अपनी बाहरी व सांसारिक सुख सुविधा पाने के लिए अपनी आंतरिक शांति और खुशी को कहीं खो चुका है। मनुष्य के बार बार भटक जाने पर भी परमेश्वर उसे अपने अथाह प्रेम से बुलाते हैं ताकि उसका उद्धार हो सके। जब मनुष्य अपने आप को खोकर अंधेरे में भटक रहा था, तब ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि मनुष्य को पापों से मुक्ति दिला सके, उन भटके हुए लोगों का सही राह दिखा सके और उनका उद्धार हो सके। यह कहानी नाजरत नामक नगर की है जो गैलीलिया में था। वहाँ मरियम नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नाम के युवक से हुई थी। एक दिन ईश्वर का एक दूत जिनका नाम गैब्रियल था वह मरियम के घर पहुंचा। मरियम अपने काम में व्यस्त थी। दूत ने मरियम को प्रणाम किया और फिर प्रणाम मरियम। आप कौन? मैं परमेश्वर का दूत गैब्रियल हूँ। प्रणाम। आप अचानक यहाँ कैसे? मैं परमेश्वर का संदेश तुम्हें देने आया हूँ। परमेश्वर का संदेश? हाँ मरियम, तुम पर प्रभु की कृपा हुई है। एक नेक काम के लिए प्रभु ने तुम्हें चुना है। हे स्वर्गदूत, मैं प्रभु की दासी हूँ। बताइए, परमेश्वर का क्या आदेश है मेरे लिए? मरियम, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करोगी और एक पुत्र को जन्म दोगी और तुम अपने पुत्र का नाम यीशु रखोगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ। एक कुंवारी लड़की माँ कैसे बन सकती है? सब लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? घबराओ मत मरियम, परमेश्वर की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी और आने वाली सारी बाधाओं को दूर करेगी। मैं तो प्रभु की दासी हूँ। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही होगा। मरियम, पवित्र आत्मा का साया तुम पर आएगा और वो जो तुमसे उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और पूरी दुनिया पर सदा राज करेगा। उसके राज का अंत कभी नहीं होगा। परमेश्वर हमेशा अच्छा ही करते हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि प्रभु ने लोगों की भलाई के लिए मुझे चुना। बच्चों, जब यूसुफ को इस बात का पता चला तो वह बहुत ज़्यादा असमंजस में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, क्योंकि वह मरियम को ना तो अपना सकता था ना ही छोड़ सकता था।
क्योंकि उस समय जब किसी युवक या युवती की मंगनी हो जाती थी तो उसे निभाना ही होता था, और यदि वह किसी मजबूरी की वजह से इसे तोड़ना भी चाहे तो उसे इसके लिए कचहरी में एक लिखित पत्र देना होता था। तब यूसुफ ने क्या किया ये हम आपको बताते हैं। मरियम से मेरी सिर्फ मंगनी हुई है, अभी शादी नहीं हुई, तो शादी से पहले मैं मरियम के बच्चे का पिता कैसे बन सकता हूँ? यदि मैं मरियम को छोड़ना भी चाहूँ तो उसके लिए मुझे कचहरी में त्याग पत्र देना होगा। मरियम को भी वहाँ बुलाया जाएगा। सब लोग उसे इस हालत में देखेंगे तो मरियम की तो बहुत बदनामी हो जाएगी। नहीं, मैं यह अधर्म नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, क्या ठीक रहेगा, मैं चुपचाप मरियम को ही त्याग पत्र देकर यहाँ से चला जाऊंगा। रात बहुत हो चुकी है, मुझे अभी सो जाना चाहिए। यूसुफ, तुम मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मत डरो। वह पूरी तरह पवित्र है और ईश्वर द्वारा उनके पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई है। बच्चे का नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इस समय मरियम को तुम्हारी जरूरत है। उस परम प्रधान की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। ये मैंने कैसा सपना देखा? दूत प्रभु का संदेश लेकर मेरे सपनों में आए। तो क्या मैं मरियम के बारे में गलत सोच रहा था? मुझे अभी उसके पास जाना चाहिए। उन दिनों सम्राट कैसर अगस्टस ने अपने साम्राज्य में एक मुनादी करवाई कि वहाँ की जनता को जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करवाना अनिवार्य है। लेकिन पापा, सूची में नाम लिखवाने का जनता और सम्राट अगस्टस को क्या फायदा? हाँ बेटा, बिल्कुल दोनों को फायदा था। जनता को इसलिए फायदा था क्योंकि शासक की तरफ से मिलने वाली प्रत्येक सुविधाओं का लाभ प्रजा के हर एक नागरिक को आसानी से मिल सके। और शासक को यह फायदा था कि उसकी प्रजा का सम्राट पर अटूट विश्वास बना रहे। वे पूरी वफादारी के साथ हर मुश्किल व संकट में अपने राष्ट्र के लिए शासक के साथ खड़े रहे। साथ ही राजा को कर प्रणाली लागू करना आसान हो जाता था। तो पापा, फिर यूसुफ और मरियम का भी नाम जनगणना लिस्ट में लिखा गया होगा? हाँ बेटा, वे दोनों जनगणना सूची में अपना नाम लिखवाने के लिए बेथलेहम शहर में गए और फिर वहाँ सुनो सुनो सुनो, सम्राट अगस्टस का शाही संदेश सुनो। सभी नागरिक के निवासियों को सूचित किया जाता है कि इस महीने की आखिरी तारीख तक सभी नागरिक बेथलेहम पहुंचकर जनगणना में अपना नाम दर्ज कराएं, जिससे कर प्रणाली में सुधार होगा और शासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। सुनो 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 सुनो। मारिया बेटा, अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। यूसुफ और मरियम कभी चलते और कभी थककर बैठ जाते। वो दोनों बड़ी मुश्किल से बेथलेहम पहुंचे। उन दोनों के पास न खाने पीने का सामान था और न ही रात में ठहरने के लिए कोई इंतजाम था। बहुत सर्दी थी। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमानी बर्फ की बारिश हो रही थी। जरा सोच कर देखें, प्रभु यीशु के जन्म के समय उनके माता पिता के हालात कैसे थे। आप सच कह रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वे नेक दिल इंसान थे। तभी तो परमेश्वर के पुत्र ने उनके यहाँ जन्म लिया। एग्निस बेटा,
कुछ समझ में आया? चलो अब मैं प्रभु यीशु की आगे की कहानी सुनाता हूँ। जब यूसुफ और मरियम बैतलहम पहुंचे तो वो रात में छुपने के लिए घर की तलाश करने लगे। भाई साहब, दरवाजा खोलिए भाई साहब। क्या हमें एक कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, चलो निकलो यहाँ से। भैया, कृपया हमें एक कमरा मिल सकता है? नहीं भाई, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे घर में दुकान का अतिरिक्त सामान भरा हुआ है, इसलिए मेरे पास कोई कमरा नहीं। तुम कहीं और जाकर तलाश करो। भाई साहब, दरवाजा खोलिए भाई साहब। कौन हो तुम लोग? हम परदेशी हैं। हम गलेरिया शहर के नाजरत गांव से आए हैं। तुम क्या करते हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं बढ़ईगिरी का काम करता हूँ। हम सम्राट अगस्टस के आदेश अनुसार जनगणना में अपना नाम दर्ज करवाने आए हैं। मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, यदि आप हमें एक कमरा दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखो भाई, मेरे घर में कुछ जगह नहीं है, लेकिन मेरे घर के पीछे कुछ दूर चलने पर एक गौशाला है। क्या तुम लोग वहाँ रात गुजार सकते हो? हमें जगह बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम वहाँ रात गुजार लेंगे। मरियम, मरियम, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं? नहीं, तुम कहीं मत जाओ। प्रभु हमारे साथ हैं, तो हमें किसी और की मदद नहीं चाहिए। एग्नेस बेटा, प्रभु यीशु के जन्म की खबर सबसे पहले भेड़ चराने वाले चरवाहों को मिली। हाँ बच्चों, एक स्वर्गदूत धरती पर आए और उन्होंने चरवाहों को प्रभु के जन्म के बारे में बताया। उन्होंने चरवाहों को बताया कि प्रभु सभी मनुष्य के उद्धार करता है। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, जो एक दिन जगत के मसीहा और राजा बनेंगे। बेटा एलिस, प्रभु यीशु का जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक अस्तबल में हुआ, और उनकी माँ मरियम ने उन्हें पुराने कपड़े में लपेटकर एक चरनी में सुला दिया था। वो गरीब थे, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करते थे, तभी तो उन्हें इस जगत का राजा कहते हैं। सॉरी पापा, अब मुझे समझ में आ गया। कोई भी व्यक्ति अपने पैसे या पद से बड़ा नहीं होता, उसके विचार में अच्छाइयाँ ही उसे बड़ा बनाती हैं। जल्दी बताओ मुझे, कौन है वह राजा? कहाँ जन्म हुआ है उसका? और यह बालक एक राजा कैसे हो सकता है? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वे दाऊद के नगर बेथलेहम में जन्मे हैं और वही लोगों के ऊपर राज करेंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। राजा मैं हूँ और मैं ही राज करूँगा। मुझे इस मामले की गहराई तक जाना होगा। कहाँ है वह 3 महापुरुष? उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। जी महाराज, मैं अभी उनको को आपके सामने हाजिर करता हूँ। तुम सब जल्द से जल्द उस नवजात बालक को ढूंढ लो और जैसे ही खबर मिले मुझे तुरंत सूचित करना।
मुझे भी उस नवजात राजा के दर्शन करने हैं। जी महाराज, हमें पता लगते ही हम आपको सूचित कर देंगे। राजा हेरोद को ये जानने की इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है हेरोद की नियत सही नहीं है। वह बालक परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें उनके लिए उपहार ले जाना चाहिए। ऐसा उपहार जो राजा के योग्य हो। वह उपहार क्या होना चाहिए? हम उपहार में सोना, मूर और लोबान लेकर जाएंगे। तो चलो फिर मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ कि चरवाहों ने क्या किया। रात में जब चरवाहे सो रहे थे तो उन्होंने आसमान से एक रोशनी को अपनी ओर आते हुए देखा। फिर देखो वह कैसी रोशनी है। हाँ, और इतनी तेज रोशनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। चलो छिप जाओ, जल्दी करो। रुको, लगता है वो कोई स्वर्गदूत है। वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। शायद वो हमको कुछ बताना चाहते हैं। डरो मत, मैं यहाँ एक महान और आनंदपूर्ण घटना की घोषणा करने आया हूँ। बेथलेहम में एक मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। वह एक उद्धारकर्ता जो मसीहा और राजा होगा। जाओ इसकी तलाश करो। वह एक गौशाला में कपड़े में लेटा हुआ और एक चरनी में लेटा हुआ है। हमें बेथलेहम जाना है। हाँ, हमें उस मसीहा के दर्शन करने हैं। लेकिन कैसे? हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? जब देवदूत ने हमें उसके बारे में बताया है तो हम उसे जरूर ढूंढेंगे। राजा का जन्म हुआ, पाई खबर, शांति बोलाया हमें ऊपर। ईश्वर मनुष्य बना काल जैसी जन्म, आया मुक्तिदाता बनकर। सरवाहे न थे मुझे।
action to give the message of Christmas. And also, as he is celebrating the birthday, we have extended our greetings to him, and I request him to give the message for today. Reverend Father Ramesh Joseph, the principal, Reverend Sister Jaina, respected teachers, my dear students, wish you all very happy Christmas and prosperous New Year to all of you. Christmas is the birth of the Christ we celebrate. The biggest message that God became man and lived among us. Emmanuel means Christ is among us, within us. Today, as we celebrate this great feast and beautiful drama has been depicted in front of us, and the story of the birth of our Lord Jesus as displayed. Along with this birth story, we see the beautiful crib there, so many stars, tree, but each thing has its own meaning. So first, I want to explain why the Christmas tree is so beautifully decorated. If you have paid attention, in the drama, the narrator had said, at the beginning God had created. For 6 days He created entire universe. And after that on 7th day He rested. Then God made human beings. And they were living in Eden garden. And God had given everything they wanted. But one thing that God had said to them, not to eat the fruit of that particular tree. And one day, by disobeying God, they ate the fruit of that tree. As a result, they become the victims of sin, and they have to be thrown out of the Eden garden. And same tree becomes in the later, when Jesus Christ was born, He became the obedient and lived His life according to the words, commands given by the Lord, and died on the cross made out of the wood that is of a tree. And He restored that tree its originality back. Therefore, because of the tree, the sin came inside, and the same tree, the sin is washed out by Jesus dying on the cross. Therefore, the Christmas tree is so beautifully decorated. And we see so many stars here. In the olden times, this star, to meet Jesus, served as a GPS. Today, to go anywhere, we put on a map and the road is displayed. In the same way, to 3 wise men, those came to meet Jesus, they followed the path of the star, and that stood exactly where the Lord was born. So today, when the star is hung around on the housetop or in the school, that indicates that in this place the Lord is living. So today we need to be proud, because when star is hanging here, the presence of the Lord is here. So we all are blessed because this star indicates that we are amidst the Lord. So there are beautiful message that each Christmas brings us, that love of God. God filled with the quality of love, forgiveness, compassion. And in the Christmas we share gifts. On so many gifts are exchanged. Why? Because God Himself gives only begotten Son as a gift to each one of us. The biggest gift that we could receive is the blessing, the Son to this humanity, to redeem us, to bring back to its original state of each human being. So today, I thank each and every one. And this platform, I want to make use as also to thank the beautiful greetings that you gave me on my birthday. I have no extra words to say other than thank you, because when emotions flow, words don't come out. I may not receive better than this floral greetings, your best wishes, but this is one of the best
wishes that you have given and all the hard work done by every one of you without mentioning any name. Each and everyone present in this year, I thank from my bottom of my heart. Thank you everyone. A very good morning to all of you. And Merry Christmas. So I take this opportunity to once again thank the Greenhouse. Greenhouse has presented the program today. It was wonderful for the presentation, for all the arrangements. I thank each member of the house and also every student who has participated in this program. So I also take this opportunity to thank Jackson, and as I am wishing him very happy birthday. This is an opportunity I can take up to thank him for all that he is doing for the school, for all that what he is to me and also to our community over here. He is a wonderful person, a wonderful gift to the Anselm family, a wonderful companion to me as we stay together, and a wonderful person to be with. So his smiling face is always an inspiration to every one of us. And therefore I take this opportunity to tell him that we all love him. So birthday is the best day when we can tell the person that we love the person. So today I take this opportunity to tell him that we all love him. So a very happy birthday to you, Father, and have a nice day. Though it is on 25th, we celebrated with one family today. So once again, happy birthday to you. Program. We would also like to thank the office staff, mic and sound team, and photography team for managing things on and off stage. We would also like to thank the discipline in charge and all the teachers who directly or indirectly provided their valuable contribution and support. We thank the Narayan Sevaks for their round-the-clock services in arranging the things. Last but not the least, we would like to thank you, dear audience, for appreciating our efforts with your applause. Thank you, one and all.